topic I choose is the digestive system and the digestion in the man, and it's from the first year biology chapter number 12. As far as concerned about the digestion in the man, digestive system is a long colloid tube that extends from the mouth and reach to the anus. It is a long colloid tube. It is also called as a GIT tract, in a gastrointestinal tract. And the main parts including in the digestive tract are the oral cavity, the buccal cavity, the esophagus, stomach, and small intestine. If I'm going to highlight it in the picture, and here I'm going to highlight some things that the that the digestive system, this is from the mouth, and this would be the anus, and here it's small intestine, and here it, and this is a long colloid tube, and this is called a digestive system. Okay, highlighting from other color, the digestive system has oral cavity, and it highlights this, and then the esophagus, and that is this, then stomach, then small intestine, and then this would be the large intestine, and here is the rectum. As far as concerned about the associated glands, there are many glands that are associated with the digestive tract. For example, there are salivary glands, liver, and the pancreas. If I am going to highlight this in the picture, then the salivary glands located in the oral cavity, that is the parotid gland, sublingual gland, submandibular gland. I will explain their locations too in the next section. And then we have pancreas. Pancreas located over there, just beneath the stomach and beneath some part of, and then red color में आपको ये liver नजर आ रहा है. So there are the three main sites in the digestive system of the man. Three main sites हैं digestive system of the human में जहाँ पे आपको digestion मिलती है. Number 1 is the oral cavity, and number 2 stomach, and the number 3 is small intestine. Oral cavity, stomach, and small intestine. This is the oral cavity, this is the stomach, and this is the small intestine. They are the three basic main sites where the digestion occurs, mainly of digestion occurs. Oral cavity is responsible for the digestion of some some carbohydrates. That it converts large molecules of carbohydrates into small. Oral cavity is just for a little bit digestion. Stomach is for the proteins, and small intestine is for the fat digestion. Next, I will explain it further. Moving towards the right, digestion in the oral cavity. There are the several functions oral cavity, and the most obvious functions are the four. Number 1, when the food enters the oral cavity will help in how to select the food. It should be from smell, taste, or somehow 5 senses आपके पास हैं जो आपको help करते हैं फूड को सिलेक्ट करने में. अगर आपको फूड अच्छा नहीं नजर आ रहा, या उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही, या आपको उसका टेक्सचर देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कभी भी वो फूड नहीं खाएंगे. सेकेंडली, ओरल कैविटी हैज टीथ. ओरल कैविटी जो आप बड़े बड़े नवाले लेते हैं उसको मेस्टिकेशन यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करती है. ग्राइंडिंग, उन टुकड़ों को फर्दर वो ग्राइंड करती है. देन लुब्रिकेशन. अगर आपका फूड, लुब्रिकेशन मीन उसको फ्लूइड प्रोवाइड करती है, उसको फ्लूइड देती है. अगर वो ज्यादा सूखा होगा, ड्राई होगा, it would be hard for you to swallow it in the esophagus to reach to the stomach. So हमारे पास यहाँ पे जो salivary glands हैं, 3 pairs of salivary glands जो मैंने अभी आपको ऊपर हाईलाइट किए, जिसमें हमारे पास पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है, सबलिंगुअल है, ये अपनी अपनी secretions करके हमारे फूड को लुब्रिकेट करते हैं. एंड देन डाइजेशन.
अ लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ी सी डाइजेशन भी होती है। अब सिलेक्शन ऑफ फूड में सबसे पहले हम देखते हैं कि जब फूड ओरल कैविटी के अंदर एंटर होता है तो ओरल कैविटी की बाउंड्रीज मैं आपको डिफाइन कर दूं। जो हमारे टीथ के ऊपर एक हार्ड सी अगर आप टच करें, जिसे हम अपना रूफ कहते हैं माउथ का, उसको हम अपना पैलेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारी टंग होती है जिसमें हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, टीथ होते हैं जो हमारी ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, एंड चीक्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने टेक्सचर को फील कर सकते हैं। Food should be smelled and felt. If the taste and the smell unpleasant or if there are any some hard objects, जैसे कि हमारे पास कोई बोन का पीस आ जाए, कोई डर्ट आ जाए या अनप्रेजेंट कोई चीज आ जाए फूड में, तो हम उसे फौरन से स्पिट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ओरल कैविटी सिलेक्ट करने में हेल्प करती है सेंसेस, जिसमें हमारे पास स्मेल, टेस्ट एंड इवन दैट साइट भी, मैंने आपको डिफाइन किया कि साइट भी हेल्प करती है। अगर आपको फर्स्ट साइट में फूड का कलर अच्छा नहीं लग रहा, अपीलिंग, आपने देखा होगा कि जितने हमारे ये ब्रांड्स होते हैं जैसे KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, OPTP हो गया, इन्होंने रेड कलर के, येलो कलर के और ये फूड की बहुत अपीलिंग पिक्चर्स लगाते हैं that even a ordinary person can't resist herself or himself कि वो फूड ना खाए, बिकॉज आपकी साइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके फूड को सिलेक्ट करने में। सो येलो इज अट्रैक्टिव कलर, आपके लेप्टिन आपके हार्मोन ग्रेलिन को रिलीज करवाता है जो कि हंगर हार्मोन है, और आपके स्टोमिक को या आपके अंदर हंगर हार्मोन्स रिलीज कराता है दैट यू वांट टू ईट दैट स्टफ। सो साइट जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि टंग, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन है, इसमें टेस्ट बड्स है, नर्व्स है और मस्कुलर ऑर्गन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ये भी सिलेक्शन में प्रोवाइड करती है। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा या आपको कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ गया तो आप फौरन से अपने उस फूड को बाहर फेंक देंगे। then second one is grinding and mastication. After the selection food को जो है ना वो teeth जो है, अब obviously हम लोग इतना नवाला लेते हैं कि वो हमारी इसोफेगस पे उसको इजीली स्वेलो नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला ने हमें हमारे ग्राइंडर्स दिए हैं जिन्हें हम टीथ कहते हैं। तो मोलर, देयर आर डिफरेंट टीथ, जो मोलर टीथ होते हैं ना वो स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और यूजफुल, दिस इज यूजफुल कि इसोफेगस जो है ना वो रिलेटिव एक स्मॉल पाइप है, स्मॉल पीसेस को अलाउ करता है। अगर हम बड़ा पीसेस खा लेंगे, बड़े पीस खा लेंगे, तो अगर उसको एज इट इज हम विदाउट ग्राइंडिंग हम खाएं, अंदर स्वेलो करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी वो इजीली जाएगा नहीं और वो हो सकता है कि हमारे विंड पाइप में भी चला जाए। इसीलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि खाने को 32 बार चबाएं और ज़्यादा चबाएं, ताकि आपकी बॉडी के लिए एक तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, जितना ज़्यादा फूड ग्राइंड होगा उसके स्मॉल पार्टिकल्स बनेंगे, उतना ज़्यादा इंजाइम जो है वो जल्दी उसके ऊपर वर्क करके उसे डाइजेस्ट कर देगा, और जितना बड़ा पार्टिकल होगा उसको डाइजेस्ट करने में उतना ज़्यादा वक्त भी लगेगा और वो इतनी जल्दी स्वेलो भी नहीं हो पाएगा। और स्मॉल पीसेस का मोर सरफेस एरिया होता है, मैंने आपको बताया कि वो एंजाइम अटैक करेंगे। लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। देयर आर द मेन फंक्शंस ऑफ द ओरल कैविटी, जिसमें स्लाइवा है। स्लाइवा के 3 पेयर्स है, मैंने आपको बताया, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड। इनकी लोकेशंस मैं आपको बताती चलूं कि जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ना, जिसमें आपको ये आ रहे हैं, ये सिचुएटेड होते हैं बिलो द टंग, राइट बिलो द टंग। अगर आप फील करें तो आपका स्लाइवा बन रहा होता है राइट बिलो द टंग। उसके बाद सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो वो बिहाइंड द जास। इफ यू फील, आप जरा अपने मुंह को ऐसे थोड़ी देर के लिए बंद करें, आपको बिहाइंड द जॉ से भी एक सिक्रीशन मिलती हुई नजर आएगी या आप फील करेंगे। और पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ ईयर में हमारे पास उनकी जो लोकेशन होती है। स्लाइवा जो है ना इन तीनों ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब स्लाइवा में सिर्फ फ्लूइड की सिक्रीशंस नहीं होते, इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, इसके अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं। अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है। स्लाइवा के अंदर हमारे पास होता है वाटर एंड म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट, आयंस एंड सम अदर साल्ट्स,
कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे हम एमाइलेज एंड पाइलेटिन कहते हैं, पैटिलिन सॉरी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब हमारी ओरल कैविटी में लिटिल बिट जो है वो डाइजेशन होती है और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमोनोसेक्राइड्स भी होते हैं। तो पॉलीमोनोसेक्राइड्स को ओरल कैविटी जो है ना वो डाइमोनोसेक्राइड्स में सिर्फ कन्वर्ट करती है। उसके बाद वो मोनो और डाई और ग्लूकोज तक जो है वो सारा प्रोसीजर फर्दर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। अब वाटर और म्यूकस का क्या फंक्शन है? वाटर और म्यूकस जो है ना वो एक स्लाइमली लिक्विड देते हैं जो कि फूड को मॉइस्ट करता है, लुब्रिकेट करता है ताकि वो ईसोफेगस से इजीली पास कर से उसे एक ओरल एक बोलस की शेप बनाते हैं। ठीक है, एफिशिएंटली च्यूड एंड पास हो सकता है ईसोफेगस से। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना वो उसके अब पीएच को मेंटेन करते हैं, उसको उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको हाईली अल्कलाइन पीएच देते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, एंटीसेप्टिक रोल प्ले करते हैं। एंटीसेप्टिक मीन उसको मतलब कंटामिनेशन से जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर चले गए हैं तो वो उन्हें किल करने की हेल्प करती है। द मेन फंक्शन कि वो स्टेबलाइज करते हैं फूड की पीएच को, भी मैंने आपको बताया। फ्रेश सलाइवा की पीएच जो होती है वो अल्कलाइन होती है यानी कि 8 होती है। ऑब्वियसली अगर हम 7 से नीचे जाएंगे तो हमारी पीएच एसिडिक स्टार्ट हो जाएगी। 7 पे पीएच न्यूट्रल होती है और 7 के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो हमारी अल्कलाइन यानी कि बेसिक पीएच हो जाएगी। लॉस करती है कार्बन एंड गेट। हमारी जो फ्रेश सलाइवा की पीएच होती है वो हमारी 8 होती है जो कि क्विकली कार्बोहाइड्रेट डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज करती है और उसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक हो जाती है जो कि 6 हो जाती है। ठीक है, पैटिलिन एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीमोनोसेक्राइड्स है, मैंने पहले भी आपको बताया, और वो माल्टोज में उसको कन्वर्ट करते हैं। माल्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड जो है डाइसेक्राइड यानी कि पोली मीन ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डायमीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि वो उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर अगर हम आगे चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि स्वेलिंग भी हमारा एक फंक्शन है ओरल कैविटी का। किस तरह से कि जैसे जैसे मैस्टिकेशन हो जाती है फूड की, लार्ज पीसेस कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल में, तो जो सॉफ्ट एंड पार्टली डाइजेस्टेड स्लाइमली फूड मैस है ना वो एक लंप ओवल स्मॉल लंप की शेप में ले लेता है जिसे हम कहते हैं बोलस, यानी कि स्मॉल ओवल लंप की शेप में। इस तरह से वो रोल होके ना स्मॉल ओवल लंप शेप में बन जाता है और एक उसकी स्लाइमी पार्टली डाइजेस्टेड और सॉफ्ट एंड लुक्ड आ जाती है। ठीक है, जिसे कि माउथ की बैक साइड पे पुश किया जाता है एक्शन ऑफ टंग और मसल्स ऑफ फेरेंक्स, जो कि इंश्योर करता है कि फूड जो है ना वो विंड पाइप में एंटर नहीं होगा। अब इसको मैं आपको ना एक उससे क्लियर कर देती हूँ डायग्राम से कि कैसे। देखें, ये जो है ना हमारा ये जो है ना हमारा ये जो है ना ये हमारा ट्रैक किया है फ्रंट साइड पे। ये जो है ना ये हमारा ट्रैक किया यानी जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ से आ रहा है ना, ये यहाँ से ये जो है ना ये हमारी ओरल कैविटी है। ठीक है, ये ईसोफेगस आ रहा है यहाँ से, ये हमारा है फेरेंक्स ये, और ये हमारा है ग्लोटस। ग्लोटस के ऊपर जैसे हमारा किसी चीज को, जैसे हम किसी बॉटल को कवर करने के लिए एक कवर रखते हैं, तो हमारे पास ऐसे ही नेचर ने एपिग्लोटस एक कवर दिया है कि जब फूड जो है वो इस पाइप में से पास करती है, इस पाइप में से, तो ये जो एक हमारे पास ऐसे एक लिड सा कवर आता है, ये दो हमारे पास इस तरह पाइप होते हैं। ईसोफेगस बैक साइड पे होता है यूं करके, और जो ट्रैकिया होता है वो फ्रंट साइड पे होता है। इसके ऊपर ना नेचर ने यहाँ पे एक कवर दिया हुआ है कि जो कि जब हम लोग खाना नहीं खा रहे तो वो ओपन होगा। ऑब्वियसली उसने सांस लेना है हमारी बॉडी ने और जाना है, लेकिन जैसे ही हम खाना खाएंगे ना
तो वो जो कवर है ना वो इसके ऊपर ऐसे लिड डालेगा टू अवॉइड कि खाना अंदर विंड पाइप में ना जाए। जैसे कोई छोटा सा जरा चला जाता है, आप देखते हैं कि हमें एक इंटेंस जो है ना वो कफिंग होना शुरू हो जाती है, हमारी आईज से पानी आना शुरू हो जाता है, हम उस चीज को बेयर नहीं कर पाते। तो नेचर ने उस चीज से बचाने के लिए हमें जो है वो एपिग्लोटस एक कवरिंग दी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये रेड रेड कलर में जो है ना ये नजर आ रहे हैं स्फिंक्टर मसल्स हैं, जिससे जैसे मैं आपको ये कह रही हूँ, ये कह रही हूँ। अब ये जो, चलो मैं आपको सारी क्लियर करके, अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे फूड जो है ना, ये जो रेड कलर में ये बोलस है, ठीक है, फूड, ये एपिग्लोटस का लेड है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अब जैसे जैसे खाना आएगा तो इसके ऊपर कवर हो जाएगा। अब बोलस नीचे आ रहा है, ठीक है। नेचर ने हर चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में स्फिंक्टर दिए हुए हैं, जैसे कि मैं यूरिनरी ट्रैक में आपके पास स्फिंक्टर होते हैं ब्लैडर को कंट्रोल करने के लिए। ये गेटवेज होते हैं किसी भी चीज के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, कि कितना फूड आगे जाना है, उसके बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कि वो बैकवर्ड मूवमेंट से दोबारा उस तरफ ना जाए। तो ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ना, ये हमारे पास गेट पे होते हैं। अब देखें फूड ना इस डायग्राम में नीचे आ रहा है, तो स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पे क्लोज थे, ठीक है, यहाँ पे देखें ओपन हो गए हैं, इस डायग्राम में देखें आप, और इधर देखें क्लोज थे, यहाँ पे डिस्टेंस कम था, यहाँ पे ज्यादा। तो यहाँ पे रिलैक्स हुए हैं स्फिंक्टर मसल्स और वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो जैसे जैसे बोलस डाउन नीचे आता है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ये एपिग्लोटस जो है, ये हमारा कवर इसने नहीं किया हुआ विंड पाइप को, ये देखें इस तरह से। लेकिन यहाँ पे देखें हमारा विंड पाइप फुली कवर हो चुका है और उसके अंदर अब खाना, वरना अगर ये ओपन रहता तो ये जो ये ग्लोटस है इधर को मूव कर जाता है, ये खाना इधर को भी जा सकता है। तो देखें ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी, लेकिन अब ये क्योंकि ये बंद हो गया है, तो ये जो बॉलस है ना ये सिर्फ इधर ही मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो विंड पाइप है वो बचा रहेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया। देन मूव करते हैं हम फर्दर के स्वेलिंग में, और क्या होता है कि पुश्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं हाईलाइट करती हूँ कि जैसे ही टंग मूव करती है ना अपवर्ड और बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ, तो वो फोर्स करती है बोलस को कि वो माउथ की बैक ऑफ कैविटी पे, यानी कि टंग की अपवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट जो है ना वो हमारे बोलस को बैक ऑफ द माउथ कैविटी की तरफ पुश करती है। और जो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग है ना वो पुश करती है हमारे सॉफ्ट पैलेट को अप और क्लोज करती है हमारी नेजल की ओपनिंग को, ताकि हमारा फूड के पार्टिकल्स हमारी नेजल के उसमें ना जाए। यानी कि हमारी अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग से हमारी नेजल भी बंद हो जाती है और बोलस की पुशिंग भी बैकवर्ड हो जाती है। सेम टाइम टंग जो है ना वो एपिग्लोटस, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्लैप ऑफ कार्टिलेज जो हमारे विंड पाइप को बंद कर देती है, जबकि हमारा जो बोलस होता है वो इसोफेगस में जा रहा होता है टू अवॉइड द एंट्री ऑफ बोलस इनटू द ट्रैकिया। तो वो मोर और लेस उसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्लोज कर देती है विंड पाइप में। ठीक है, उसके बाद लेरिंग्स होता है, कार्टिलेज होता है राउंड ऑफ ट्यूब। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट की, लेरिंग्स होता है कार्टिलेज अराउंड द टॉप ऑफ द विंड पाइप, मूव करता है अपवर्ड अंडर द बैक ऑफ द टंग। ठीक है, ग्लोटस जो है वो पार्टली क्लोज्ड होता है, सारा क्लोज नहीं करते क्योंकि यू हैव टू ब्रीथ। अगर वो सारा क्लोज हो जाएगा तो वो आपको सांस भी नहीं आएगा। वो इतना क्लोज होता है कि वो अपने बोलस की जो डायरेक्शन है उसको डाइवर्ट कर सके टुवर्ड्स द इसोफेगस। द फूड डज नॉट एंटर द पार्टली ओपन ग्लोटस, क्योंकि एपिग्लोटस जो है वो डाइवर्ट कर देता है फूड को वन साइड ऑफ द ओपनिंग और सेफली इसोफेगस में। तो जो हमारी स्वेलिंग का जो बिगनिंग एक्शन होता है वो वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब हम खुद उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें पसंद नहीं आ रहा खाना तो हम उसे स्पिट कर सकते हैं बिफोर स्वेलिंग, लेकिन जब आपने एक बार फूड स्वेलो कर लिया उसके बाद हमारी बॉडी उसे खुद कंट्रोल करेगी, वो इनवॉलेंट्री हो जाएगा और स्वेलिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली होगी, और जो फूड है वो फोर्स होगा इसोफेगस से बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालिसिस। अब हम इस वर्ड पेरिस्टालिसिस को एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या कहता है। पेरिस्टालिसिस के मूवमेंट्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर एक मूवमेंट है जो कि फूड को
आगे आगे मूव करने के लिए यूज होती हैं। पेरिस्टाल्टिक आर द वेव मूवमेंट जिसमें हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स होके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। इस रिलैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हमारा जो फूड है, बोलस है, वो आगे आगे मूव करता है। मैं फर्दर इसको एक डायग्राम से हाईलाइट करती हूँ। जैसे हमारा जो फूड है वो एंटर हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब जहां जहां से फूड मूव कर रहा है बोलस, वहां वहां से हमारा मसल्स रिलैक्स है, और जहां जहां से नहीं मूव कर रहा वहां वहां से कॉन्ट्रैक्ट है। इस रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जो कि हमारे मूवमेंट को डाउन द इसोफेगस पुश करता है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे रिलैक्स्ड है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और स्टोमिक तक लेके जाता है, ठीक है। और ग्रेविटी भी इस चीज में हमें असिस्ट करती है, ठीक है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट है डाइजेस्टिव ट्रैक में, जिसमें फूड जो है ना वो कैविटी कैनाल तक मूव करता है, जिसमें हमारे पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की ना वेव ऑफ रिलैक्सेशन होती है, जो कि स्क्वीज करती है फूड को कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाए। पेरिस्टाल्टिक जो है ना वो हमारा जैसे ही फूड एंटर होता है ना बकल कैविटी में, ईसोफेगस से स्टार्ट होता है स्टमक तक, और फिर सारे एलिमेंट्री कैनाल तक इसकी यही मूवमेंट चलती रहती है। एलिमेंट्री कैनाल हम कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी हम इसे ही कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को। मूवमेंट्स, अब एक इसमें इशू आ जाता है कि कभी कभी हमें जो वॉमिटिंग्स की फीलिंग आती है, और जो वॉमिटिंग होती है वो किस वजह से होती है, कि कभी कभी कुछ रीजंस की वजह से हमारी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि फूड बजाय नीचे जाने के, स्टोमिक में जाने के या अदर साइड्स पे जाने के, वो ऊपर आ जाता है, फूड ऊपर आ जाता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हमारी जो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, जिन्हें हम डिफाइन फर्दर इस तरीके से करना चाहते हैं कि हंगर कॉन्ट्रैक्शंस और एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन विच हैज इंक्रीज्ड बाय द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इसमें क्या होता है कि हमारा फूड जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्योंकि डाउन द हमें ईसोफेगस स्टोमिक की तरफ लेके जा रही होती हैं, तो इसमें जो हमारा फूड है ना वो हमारा अपवर्ड आना शुरू हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, इसके और बहुत से कि हंगर कॉन्ट्रैक्शंस में हमारी जो हंगर कॉन्ट्रैक्शन पे ना इंक्रीज होता है ब्लड, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। मतलब जब हमें भूख लगती है, हंगर पैंग्स आते हैं, जब हमारे वॉमिटिंग होती है, ठीक है, वॉमिटिंग आ जाती है। इसमें अब हमारी हंगर कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे हंगर पैंग्स आते हैं, जैसे आप फेल कर रहे होते हैं कि जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, तो जो आपका स्टमक होता है ना उसके अंदर आपको ना एक आवाजें सी फील होती हैं कि अब आपको लगता है, जिससे आप कहते हैं अब मेरे पेट में चूहे चूहे दौड़ रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी जुबान में हम इसे ये कहते हैं। तो उसकी साइंटिफिक वर्ड्स होती हैं हंगर पैंग्स। अब वो क्या होती हैं, वो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक की एक, हमारी बॉडी के अंदर ना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है, जो कि हमारी रूटीन को ऑब्जर्व करके बॉडी खुद सेट कर लेती है। अब जब एक खास टाइम के बाद हम खाना नहीं खाते ना, तो हमारी बॉडी को लगता है, जब हमारा ग्लूकोज लेवल लो हो गया, कि अब तुम्हें खाने की जरूरत है, तो वो हंगर पैंग्स जनरेट करती है, वो खुद ब खुद अपनी मूवमेंट्स को स्टार्ट कर देती है। उससे क्या होता है कि हमारी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं ना वो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होती हैं, जिसे हम हंगर पैंग्स कहते हैं, और हमें एक अनकंफर्टेबल सी सेंसेशन आती है, ठीक है। हंगर पैंग्स जो है ना वो 12 to 24 आवर्स आपने जो पिछला खाना खाया होता है ना उसके बाद शुरू होती है। कुछ लोगों में ये 2-3 घंटे बाद भी शुरू हो जाती है, यानी कि जिनको आदत होती है थोड़ा थोड़ा खाने की। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि कितने घंटे के बाद स्टार्ट होती है। So here we end our today's topic, and I hope that you will fully understand it. I will try my best to explain my further lectures very well. And if you have any query, do ask. Thank you very much.